Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Masapura School, Bhuj. Welcome all of you, and now we are going to continue our maths second chapter, polynomial. So dear friends, today we will start our new chapter, chapter number 2, polynomial, and I hope so. Are you ready to perform the new chapter's exercise? Okay, exercise number 2.1, and today we are going to continue to learn question number 1 and 2. How can we perform and try to understand question number 1 and 2. Okay, question number 1 is, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिस्कस करनी है कि हमें जो यहाँ पर अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं वो अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल 4x square minus 3x plus 7, 4x square minus 3x plus 7. Here we can write 4x square minus 3x plus 7 into x raised to 0. Look here. Here the variable is x present in all the terms, and all the exponents of x raised to 2, x raised to 1 and x raised to 0 are whole numbers. Therefore 4x square minus 3x plus 7, 4x square minus 3x plus 7 is the polynomial in one variable, and here variable is x. Okay, second one, y square plus under root 2. Therefore, y square plus under root 2 multiply y raised to 0. Here also, all the exponent of the y are whole number, and that's why we can say that y square plus root 2 is a polynomial in a one variable y. Now, example number 3, 3 into root 3, 3 into under root 3 plus t into root 2. 3 into under root t plus t into under root 2. We can write the expression is in the form of the 3 t raised to power 2 1/2 plus root 2 into t raised to power 1. Once again, सबसे पहले 3 square root of t plus t into square root of 2 यहाँ पर दिया गया है, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 into t raised to power 1/2 plus root 2 into t raised to power 1. But look here, t raised to power 1 by t raised to power 1 by, and 1 by 2 is not a whole number, it's a fraction. So that's why t raised to 1/2 plus root 2 into t is not a polynomial. Therefore 3 into square root of t plus t into square root of 2 is not a polynomial. Example number 4, y plus 2 upon y. We can write here y plus 2 into y raised to minus 1, y raised to minus 1, and minus 1 is not a whole number. Therefore here also we can say that y plus 2 upon y is not a polynomial. In case number 5, from exercise 2.1, question number 1, x raised to 10 plus y raised to 3 plus t raised to 50. Here all exponents of the every variable, exponent of x variable is 10, y variable is 3 and t's variable is 15. All exponents of the every variable is a whole number, and that's why x raised to 10 plus y raised to 3 plus t raised to 50 is a polynomial in x, y and t variable. तो यहाँ पर 3 variables पॉलिनोमियल हैं ये. ओके, तो सबसे पहली बात ये कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल और विच आर नॉट. ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, तो फिर से आपको एक बार इन शॉर्ट बता दें. व्हाट इज द पॉलिनोमियल? एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कंसिडर करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है इन शॉर्ट में
पॉलिनोमियल कंसिडर करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। मतलब कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1/2 जैसी p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस होने वाला रेशनल नंबर मतलब कि फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। जिस पॉलिनोमियल के एक्सपोनेंट होल नंबर में प्रेजेंट किए जा सकते हैं ऐसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कंसिडर होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई थी कि आपको पॉलिनोमियल के साथ साथ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कंसिडर करना था, तो जिसमें सिर्फ x जैसे एक ही वेरिएबल का यूज हुआ हो, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कंसिडर होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने देखा कि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स था, तो ये हमारे लिए कंसिडरेबल पॉलिनोमियल नहीं कही जाएगी। अलबत्त ये पॉलिनोमियल है, ऑलरेडी है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स x, y एंड t के साथ है। तो आई होप सो अंडरस्टैंड यू वेरी वेल। अब क्वेश्चन 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पॉलिनोमियल्स दी गई है, वहां पर आपको कोफिशिएंट कहना है x स्क्वायर का। ओनली वन टर्म x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कहना है। कोफिशिएंट क्या है ये भी आपको बता दें। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इज विच इज अ कांस्टेंट अलोंग विद द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है टर्म्स रिलेटेड, उसे कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल कहते हैं। चलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं, 2 + x स्क्वायर + x। Here the 3 terms available. First is the 2, second is the x square and third is the x. हमें सिर्फ कहना है x square का कोफिशिएंट कहना है। So here the coefficient of x square कुछ नहीं है, वहाँ पर 1 ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। Therefore हम कहेंगे कि the coefficient of x square is equal to 1। ठीक इसी तरह से सिमिलरली सेकंड में 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। हियर द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन लगा हुआ है, दैट मींस इसका कोफिशिएंट होगा -1। थर्ड केस में π/2 x स्क्वायर + x, द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर इज π/2। π/2 इज द कांस्टेंट अलोंग विद द वेरिएबल टर्म्स। एंड लास्ट वन √2 × x - 1, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहाँ पर √2 × x - 1 को इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं, √2 × x + x - 1 + 0 × x स्क्वायर। यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म ही प्रेजेंट नहीं है और इसलिए उसका कोफिशिएंट है वो 0 कंसिडर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। फिर से एक बार आपको बता दूं, पॉलिनोमियल है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, उसके सारे के सारे टर्म्स के वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट हैं वो एक्सपोनेंट होल नंबर्स में मिलने चाहिए, वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होने चाहिए। तो इसे हम पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे और इसीलिए आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी रखी है। एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो इसके हिसाब से कहेंगे। दूसरा हमें देखना है वन वेरिएबल है या नहीं है। तो अगर जो सारे के सारे टर्म किसी एक वेरिएबल में एक्सप्रेस किए जाते हैं तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कंसिडर होगी। अगर जो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के 5th एग्जाम्पल के अंदर देखा गया था, तो इसे जिस तरह से इसके वेरिएबल अवेलेबल है उसके हिसाब से इसे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कंसिडर की जाएगी। और जो दूसरी बात थी वो है क्वेश्चन नंबर 2 में कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट नंबर है जो वेरिएबल टर्म्स के साथ लगा हुआ आता है, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया। आई होप सो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, साथ में टेक्सचुअल एग्जाम्पल को भी साथ में इंक्लूड करते जाइए कैलकुलेशन में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।